زمانہ قدیم کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک محنت کش لوہار اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن بیٹا، جس کی عمر ابھی جوانی کی دہلیز پر تھی، اپنے باپ سے عجیب فرمائش لے کر آیا۔ ابا جان، میرے لیے ایک ایسی چھری بنائیں جس کی دھار بجلی کی طرح تیز ہو۔ باپ نے حیرت سے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بیٹا، چھری سے کیا کام لینا ہے؟ یہ تو بتا دو۔ لیکن بیٹے نے گول مول جواب دیا، ابا، بس مجھے چاہیے۔ باپ نے بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی اور اپنی مہارت سے لوہے کی ایسی تیز چھری بنا ڈالی کہ جیسے ہاتھ لگتے ہی کٹ جائے۔ لیکن جو ہی بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار آیا، وہ شیر بن گیا۔ آنکھوں میں عجیب غرور اور لہجے میں بے رحمی آ گئی۔ اس نے باپ کو حکم دیا، ابا، سیدھے راجا کے محل جاؤ اور راجکماری کا رشتہ میرے لیے مانگو۔ اگر انکار کیا تو یہ چھری تمہارے گلے پر چلے گی۔ بوڑھا لوہار کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خود کو کوسا کہ کیوں بیٹے کی بات مان کر اسے یہ ہتھیار دیا۔ اب اگر راجا کے پاس جاتا ہے تو یقیناً سزا پائے گا، اور اگر نہ گیا تو بیٹا مار دے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد لوہار نے دل کڑا کر کے فیصلہ کیا، اگر مرنا ہی ہے تو کم از کم عزت سے راجا کے ہاتھوں مروں۔ لوگ کہیں گے لوہار راجکماری کے لیے رشتہ مانگنے گیا تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں بے نام مرنے سے بہتر ہے۔ چند دن بعد وہ کپکپاتے قدموں سے محل پہنچا، راجا کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، مہاراج، میں اپنی اوقات جانتا ہوں، لیکن میرے بیٹے نے کہا ہے کہ اب کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ راجا غصے سے لال ہو گیا۔ بدتمیز، ایک کاریگر کی اولاد ہماری بیٹی سے شادی کرے گی؟ لیکن اس کے وزیر نے نرمی سے راجا کے کان میں کہا، مہاراج، اگر آپ ابھی اسے قتل کر دیں گے تو لوگ مذاق بنائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط رکھیں جو ناممکن ہو۔ راجا نے گہرا سانس لیا اور بولا، لوہار، اگر تیرا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو، نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، تب ہم رشتہ دینے پر غور کریں گے۔ لوہار نے جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو لے کر اس شرط کو پورا کرنے کی راہ پر نکل کھڑا ہوا۔ لوہار اور اس کا بیٹا راجا کی دی گئی شرط کو پورا کرنے کے لیے لمبے سفر پر نکل پڑے۔ کئی دنوں کے پیدل سفر کے بعد وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں درختوں کی چھاؤں میں عجیب و غریب مناظر ان کے منتظر تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے نیچے پہنچے جہاں ایک شخص اپنی ٹانگ چولہے میں ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے آگ کے شعلے لپک رہے تھے اور وہ شخص تیل کی کڑاہی میں پکوڑے تل کر مزے سے کھا رہا تھا۔ ارد گرد پیلے پھول بکھرے تھے اور منظر حیرت انگیز تھا۔ لوہار اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولے، یہ کام تو یقیناً نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ اگر یہ لڑکا یہ ہنر سیکھ لے تو راجا کو منہ توڑ جواب مل سکتا ہے۔ لوہار نے آگے بڑھ کر اس شخص سے کہا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لے، اسے بھی یہ فن سکھا دے۔ مرد بولا، نہیں بھائی، آگے جاؤ، میرے استاد تھوڑا آگے بیٹھے ہیں، وہ چاہیں گے تو تمہارے بیٹے کو شاگردی پر رکھ لیں گے۔ باپ بیٹا دوبارہ روانہ ہو گئے۔ چند فرلانگ آگے جا کر انہیں ایک اور منظر دکھائی دیا۔ ایک اور شخص، اس بار ایک بڑھ کے پیڑ کے نیچے اپنی ایڑی میں آگ دکھائے بیٹھا تھا۔ تیل کی کڑاہی میں جلیبیاں تل رہا تھا اور ارد گرد میٹھے پھل بکھرے پڑے تھے۔ یہ منظر تو پہلے سے بھی عجیب تھا۔ لوہار نے اسی امید سے عرض کی، میرے بیٹے کو اپنی شاگردی میں لے لو، اسے یہ جلیبیاں تلنے کا کمال سکھا دو۔ وہ شخص بولا، نہیں بھائی، آگے جاؤ، میرا الفاستد کچھ داور بیٹھا ہے، اگر وہ چاہے گا تو تمہارے بیٹے کو قبول کر لے گا۔ مایوس ہو کر وہ دونوں پھر چل پڑے۔ اب کے بار وہ ایک بیری کے پیڑ کے نیچے پہنچے۔ ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے جن کے چولہے میں بھی ٹانگ تھی اور ایڑیوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
उनके चूल्हे पर गिने के रस से भरी कड़ाही रखी थी, जिसमें वो गाढ़ बनाते जा रहे थे और चम्मच से उठाकर मजे से चख रहे थे। ये मंजर पहले दोनों से कहीं ज्यादा हैरान कुन था। लोहार ने आजिजी से कहा, ए बाबा, मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में ले लो, इसे भी गाढ़ बनाना सिखा दो। इस बार बुजुर्ग ने मुस्बत जवाब दिया, ठीक है, मैं इसे शागिर्द रखता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे इस कमरे में बंद कर दो और 1 साल तक वापस ना आ। ये चाबियां ले लो और दरवाजे को बाहर से बंद करके मुझे वापस कर दो। लोहार ने सोचा कि शायद किस्मत ने साथ दे दिया है। उसने कमरा खोला, बेटे को अंदर बिठाया, दरवाजा बंद किया, चाबियां वापस की और खामोशी से रुखसत हो गया। अंदर लड़का परेशान बैठा रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, कोई खाने को आया ना पीने को। जब भूख से निढाल होकर उसने कमरे का जायजा लिया तो उसकी सांसें थम गईं। चारों तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। इन सब को देखकर लड़के पर लर्जा तारी हो गया। क्या मैं भी इन जैसा अंजाम पाऊंगा? मेरा बाप मुझे भूल गया। लेकिन अचानक उसने जमीन पर पड़ी एक बड़ी हड्डी उठाई, जिसका सरा तेज छुरी की तरह था। उसने इससे दीवार खोदनी शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वो दीवार में एक बड़ा सराख करने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ एक खूबसूरत सजे सजाए कमरे का मंजर था। कीमती पर्दे, नर्म बिस्तर और एक जाली के पीछे मौजूद एक इंसान की सांसों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही लड़का पर्दा हटाता है, सामने एक बेहद हुसैन लड़की नजर आती है जो बिस्तर पर आराम कर रही होती है। लड़के को देखकर वो पहले तो घबरा जाती है, फिर आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहती है, मत घबराओ, मेरे करीब आओ। वो तो कौन हो, कैसे आए? लड़के बैरी के दरख्त तले कैद के दिनों में लड़की ने लोहार के बेटे को तन्हा नहीं छोड़ा। वो न सिर्फ उसे लजीज खाने देती, उम्दा लिबास पहनाती, बल्कि दिन रात इसे जादू के हर राज से रोशनास कराती। वो खुद भी कोई मामूली जादूगरनी न थी। बाप अगर जादू के 14 दर्जे जानता था तो बेटी 16 पर थी। लड़का वक्त के साथ बदलने लगा। इसके चेहरे पर एतमाद, आवाज में ठहराव और निगाहों में कुछ ऐसा नूर आ गया जो किसी आम इंसान में ना होता। वो अब अलम जादू में एक माहिर बन चुका था। उधर लोहार 1 साल तक बेटे को लेने न गया। उसका ख्याल था जब तक बेटा मुकम्मल जादू ना सीख ले, जाना बेवकूफी होगी। 2 साल के बाद वो वापस बैरी के दरख्त के पास पहुंचा। वहां वही पुराना शख्स अपनी टांग चूल्हे में डाले रस से गढ़ बनाकर खा रहा था। लोहार ने कांपती आवाज में पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहां है? 2 बरस पहले इसे तुम्हारे सुपुर्द किया था। जादूगर बोला, मियां, मैं तो यही बैठा गढ़ बनाता रहा, कमरे की तरफ तो कभी देखा भी नहीं। ये ले चाबियां, खुद जाकर देख लो। लोहार के चेहरे पर हवाइयां अल्फाड़ने लगीं। दिल में 1000 वसवसे, आंखों में आंसू। कहीं मेरे बेटे की भी हड्डियां ना बची हों। जब लोहार ने दरवाजे में चाबी घुमाई, अंदर झांका तो हैरत से दम साध गया। कमरा खाली था। फिर वो सराख के रास्ते अगले कमरे में गया, जहां जादूगरनी बेटी और लोहार का बेटा एक साथ बैठे थे। लड़के को जिंदा देखकर लोहार की आंखें भर आईं। वो लपक कर बेटे से लिपट गया, खुदा का शुक्र अदा किया और बेटी का शुक्रिया अदा किया। लड़की संजीदा होकर बोली, अब तुम दोनों की नजात एक चाल में छपी है। बाबा को यकीन दिलाना होगा कि तुम मर चुके हो। फिर इसने एक मंसूबा दिया, अब्बा के पास जाओ, रोते पिटते कहो कि तुम्हारा बेटा भूख से मर गया। इससे इजाजत मांगो कि बेटे की हड्डियां किसी कपड़े में लपेट कर दफना सको। लोहार ने ऐसा ही किया। बाहर गया, दर्दनाक लहजे में फरियाद की और चादर मांगी। जादूगर ने चादर दे दी और बोला, ले जा, हड्डियां तेरे ही काम आएंगी। लोहार चादर लेकर वापस आया, बेटे को इसमें लपेटा, कांधे पर उठाया,
और लड़की को रुखसत करने के लिए कहा, बेटी ताब भी चल हमारे साथ, बाप से आजाद हो जा। लेकिन लड़की ने दिखी मुस्कुराहट के साथ इनकार किया, नहीं, अगर मैं भी चली तो हम तीनों पकड़े जाएंगे। मेरा मुकद्दर यही कैद खाना है। लेकिन खबरदार, जो जादू तुम्हें सिखाया है इसे रास्ते में इस्तेमाल न करना। अभी कुछ न कमाना, वरना बाबा सब जान जाएगा। लोहार ने इस बात में सर हिलाया, बेटे को चादर में छुपाया और बाहर निकल आया। दूर जाकर चादर खोली, बेटे को बाहर निकाला और दोनों ने सजदा शुक्र अदा किया। जब वो जंगल से निकले तो सरसब्ज खेतों और जमींदारों की जमीनों तक पहुंचे। बेटे ने शोखी से कहा, अब्बा एक कमाल दिखाता हूं, मैं अभी एक मंत्र पढ़कर बैल बन जाऊंगा। तुम मुझे जमींदार को बीच देना, मगर रसो मत देना, बस रसो याद से निकाल लेना। लड़का बैल बना। लोहार उसे लेकर एक जमींदार के पास पहुंचा। जमींदार ने बैल देखा, जांच परख की, हल में जोड़कर आजमाया, बैल शानदार निकला। लोहार ने कीमत मांगी, 5.25 रुपए, लेकिन रसो नहीं दूंगा। जमींदार राजी हो गया। रसो उतारी गई, पैसे लिए गए और लोहार चल पड़ा। कुछ फासले पर जाकर बैल दौड़ा और लोहार के पास आकर दोबारा इंसान बन गया। जमींदार चलाता हुआ पीछे आया, बाबा मेरा बैल भाग गया, क्या तुमने देखा? लोहार ने अनजान बनकर कहा, अभी तो तेरे हवाले किया था, कहां गया? कुछ पता। जैसे ही लोहार और उसका बेटा पहली कमाई की खुशी में आगे बढ़े, जंगल पीछे रह गया, खेत खत्म हुए और अब वो पगडंडियों से होते हुए एक नए गांव की तरफ जा रहे थे। आसमान साफ था और बेटे के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसी दौरान बेटे ने फिर एक नई जिद की, अब्बा इस बार कुछ बड़ा करते हैं, मैं अब ऊंट बनूंगा और इस बार 9 रुपए लेंगे, लेकिन रसू कभी भी मत देना, ना भूलना। लोहार ने हंसते हुए हामी भरी। लड़के ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक शानदार, खूबसूरत, तंदुरुस्त ऊंट बन गया। लोहार ने रस्सों पकड़ी और आगे चल दिया। रास्ते में एक फकीर नुमा बूढ़ा आदमी बैठा था, मिट्टी से लिथड़ा, आंखों में चमक ये और कोई नहीं, वही जादूगर था जिसने अब अपना रूप बदल लिया था। वो उनके आने का शिद्दत से मुंतजिर था। फकीर ने ऊंट को देखते ही कहा, बाबा जी ये ऊंट बेचोगे? लोहार को जैसे सोने की कान हाथ आ गई हो, बोला, जी हां बेचूंगा, 9 रुपए लूंगा, लेकिन एक बात, रसों में नहीं दूंगा। फकीर ने झट 9 रुपए निकाले, लोहार की हथेली पर रखे और बोला, बाबा मैंने ऊंट खरीदा है, रसों समेत। जब कीमत पूरी दी है तो रसों भी साथ जाएगी। अब बात बढ़ने लगी, बहस व तकरार शुरू हो गई। फकीर जोर देकर कहता, जानवर खरीदा है तो रसों भी मिली जानी चाहिए। लोहार इनकार करता रहा। शोर इतना बढ़ा कि करीबी खेतों में काम करने वाले किसान भी जमा हो गए। सब ने फकीर की बात मानी कि वाकई जानवर बेचने वाला रसों अलग से क्यों रखे। लोहार हार गया, मजबूरन रसों दे दी। जादूगर की चाल कामयाब हो चुकी थी। रसों, जो दरअसल जादू का नकेल था, अब उसके कब्जे में थी। ऊंट अब जादूगर की कैद में आ चुका था, मगर यह लड़का अब वो ना था जो पहले कभी किसी की कैद में आता। 2 साल की सख्त तरबियत ने इसे पूरा जादूगर बना दिया था। ऊंट ने एक झटका दिया, आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और एक लम्हे में वो कबूतर बनकर फिजा में अलिफाड़ गया। जादूगर चीखा, लपका, मगर देर हो चुकी थी। रसू का सनरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो भी मंत्र पढ़कर बाज बन गया और कबूतर के पीछे हुआ में झपटा। फिजा में अजीब मुकाबला शुरू हो चुका था। आसमान पर बाज और कबूतर की दौड़। कबूतर को बचने की एक राह दिखाई दी। नीचे गांव की कुछ औरतें जो छप्पर से काली सिया मिट्टी निकाल रही थीं।
वो एक मंत्र पढ़कर मेंढक बन गया और छप्पड़ में छप गया। बाज जो अब जादूगर था, भेस बदला और बगला बनकर पानी में उतरा। चोंचे मारता, पानी खंगालता, मेंढक की तलाश में लगा रहा। मगर लड़का समझदार था। छुपने के लिए एक और चाल खेली, मंत्र पड़ा और एक चमकता हुआ छल्ला बनकर एक नौजवान औरत की उंगली में जा छुपा। गांव की वो खूबसूरत लड़की जो मिट्टी निकाल रही थी, छिले को देखकर खुश हो गई, इसे उंगली में पहन लिया और घर की राली। जादूगर अब फकीर के रूप में इसके पीछे पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची, आटा छानने लगी, फकीर दरवाजे पर आ पहुंचा और सदा लगाई, बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली वाला छल्ला दे दे। लड़की ने हैरत से फकीर को देखा। ये क्या बेहुदा बात है? कौन होते हो तुम मुझसे जेवर मांगने वाले? शोर इतना बड़ा कि मां भी बाहर आ गई। मां ने बेटी को आंखें दिखाएं तो छप्पर से मिट्टी लेने गई थी, उंगली में छल्ला कहां से आ गया? इस आशिक ने तुझे यह तोहफा दिया, फौरन आतार और फेंक। बेचारी लड़की मजबूर हो गई। उसने छल्ला उंगली से निकालकर जमीन पर फेंक। जब जादूगर बाज की शक्ल में राजा के महल के ऊपर चक्कर लगा रहा था, इसी वक्त लोहार का बेटा कबूतर से मंत्र पढ़कर एक सोने की बारीक मगर चमकती तार में बदल गया और सीधा जाकर राजा के ताज में जा छुपा। ऐसा नाजुक और दिलकश मंजर था कि अगर कोई देखता तो आंखें झपकना भूल जाता। बाज जादूगर ने कई चक्कर लगाए, नीचे झांका, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ न था। वो जान चुका था कि लड़के ने आखिरी चाल खेल दी है। इसी लम्हे जादूगर ने होशियारी से दोबारा फकीर का भेस इख्तियार किया, महल के अंदर दाखिल हुआ और सीधा दरबार में पहुंचा जहां राजा तख्त पर बैठा था। वज़रा, दरबारी, सिपाही सब कतार में खड़े थे। फकीर ने बुलंद आवाज में सदा लगाई, ए महाराज, आपके ताज में जो सुनहरी तार चमक रही है वो मेरी मलकियत है, बराहे करम मुझे वापस दे दीजिए। राजा चौंका, मेरे ताज में सोने की तार? कैसी तार? ये कब आई? दरबारियों ने गौर से ताज को देखा तो वाकई एक खूबसूरत सुनहरी तार चमक रही थी। राजा हैरत से बोला, ये तो आज सुबह से पहले यहां ना थी। राजा ने आहिस्ता से ताज उतारा, अपना हाथ बढ़ाया और तार निकालने लगा। जो ही तार राजा के हाथ में आई, वो तस्बीह में तब्दील हो गई, रंग बरंगे मोतियों की खूबसूरत तस्बीह। राजा हैरत से तस्बीह को घूरने लगा, लेकिन फकीर ने एक झपटा मारा और खुद मुर्गा बन गया। वो जमीन पर गिरे हुए मोती चागने लगा। मगर वही लम्हा फैसला कुन बन गया। लोहार का बेटा, जो अब मुकम्मल जादूगर था, एक लम्हे में मंत्र पढ़कर बलि बन गया। वो बलि जो मोती चागते हुए मर्गे पर झपटी और इसे दोनों पंजों से दबोचकर जोर से जमीन पर दे मारी। मुर्गा तड़पा, चीखा और एक लम्हे में खामोश हो गया। राजा, दरबारी, वजीर सब के सब हुकुआ बकुआ देखते रह गए। धूल छटी, खामोशी छा गई। अगले लम्हे बलि मंत्र पढ़कर अपनी असल सूरत में वापस आ गई। वही लोहार का बेटा, वही सादा लिबास, वही पर एतमाद आंखें। उसने अदब से राजा को सलाम किया और बोला, महाराज बताइए, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा तमाशा देखा? कभी सोने की तार को तस्बीह बनते और मोती को चागते मर्गे को मरते देखा? राजा की जबान बंद हो गई। वो हैरत में सिर्फ सर हिला सका। लड़के ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर वो वदा याद कीजिए जो अपने मेरे बूढ़े बाप से किया था। अपने फरमाया था कि अगर कोई ऐसा काम हो जो ना पहले किसी ने देखा हो, ना सुना हो, तो राजकुमारी का रिश्ता मंजूर होगा। मैं वही लोहार का बेटा हूं। मैंने वदा पूरा किया, अब आपकी बारी है। राजा का सर झक गया। वो जानता था अब इनकार मुमकिन नहीं। दरबारी भी सरगोशियां कर रहे थे और वजीर मुस्कुरा रहा था कि मामला वकार से निमट गया। राजा ने खड़े होकर बाकायदा ऐलान किया,
लोहार का बेटा, जो आज मेरे दरबार में इल्म, हुनर और जादू में सबसे आगे निकला, इसे मैं अपनी बेटी का हाथ देता हूं। महल के दरवाजे खोल दिए गए, बारात की तैयारी होने लगी और पूरे शहर में धूम मच गई। धूल, निगार, साज, गीत, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के हुक्म के बाद महल के सब दरवाजे जश्न के लिए खिल गए। राजमहल को रंग बरंगी झंडियों, फानूसों और चमकते दिए से सजाया गया। गांव वाले, शहरी, अमीर व गरीब सबको दावत दी गई। राजकुमारी को संवारा गया और लोहार के बेटे को शाही लिबास पहनाया गया। ये वही बेटा था जो कभी गांव में अपने बाप से छुरी की जिद करता था। आज वो राजकुमारी का दूल्हा बनने जा रहा था। बारात महल पहुंची। राजा ने खुद लड़के को गले लगाया और दुल्हन के वालिद की हैसियत से निकाह की रस्म अदा करवाई। शादी पूरे शाही अंदाज से मुकम्मल हुई। ढोल बजे, आतिशबाजी हुई और 7 दिन तक जश्न मनाया गया। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था। लोहार का बेटा अब राजा का दामाद बन चुका था, लेकिन उसके दिल में वो जादूगरनी लड़की बसी हुई थी जिसने न सिर्फ इसे बचाया था बल्कि अलम जादू सिखाया और बाप की कैद से निकाला। शादी के तीसरे दिन जब सब महफिलें खत्म हो गईं और दरबार में राजा, वज़रा और अवाम मौजूद थे, तो लोहार के बेटे ने खड़े होकर सबके सामने हाथ जोड़कर अर्ज की, महाराज, एक अमानत अभी जंगल में रह गई है। वो बेटी जो जादूगर की बेटी होते हुए भी नेकी का रास्ता इख्तियार करती है और मुझे इल्म अता करके आजाद करती है, वो महल की नहीं लेकिन दिल की रानी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे मिलने जाना चाहता हूं। राजा ने, जो अब अपनी बेटी का नया शौहर देखकर खुश था, फराख दिली से इजाजत दे दी। जाओ, जो तुम्हें यहां तक लाया इसे भूलना कम ज़र्फी है। लोहार के बेटे ने चंद खास दरबारी साथ लिए और इसी पुराने रास्ते पर रवाना हुआ। वही बैरी का दरख्त, वही गढ़ बनाने वाला कमरा, वही पुरानी चुप। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सब कुछ वीरान था। दरख्त सूख चुका था, चूल्हा ठंडा पड़ चुका था और वो कमरा मुकफ्फल। उसने चाबी से दरवाजा खोला। वो लड़की साहिरा मिट्टी के फर्श पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा जर्द, सांसें मध्यम। वो आहिस्तगी से इसके करीब गया, झुककर बोला, मैं आ गया हूं तुम्हें लेने, जैसे वदा किया था। साहिरा ने आहिस्तगी से आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, तुमने वदा निभाया, मगर मैं अब इस कैद से निकल चुकी हूं। मेरे हिस्से की रोशनी तुम्हारी राह में डाल दी है। अब तुम्हें अपनी रोशनी से सल्तनत को रोशन करना है। यह कहकर उसकी गर्दन आहिस्ता से एक तरफ ढलक गई, जैसे एक हुनर, एक कुर्बानी, एक ख्वाब मुकम्मल हो गया हो। लोहार का बेटा खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून। उसने अपने साथियों की मदद से साहिरा को दफन किया, कब्र पर नरम मिट्टी डाली और उस पर सोने के तार से बना छोटा सा जादुई चिराग रखा ताकि वो हमेशा रोशनी देती रहे। वो वापस महल लूटा, मगर अब वो सिर्फ राजा का दामाद नहीं था, अब वो अवाम का राजा बनने जा रहा था। चंद ही रोज बाद बूढ़े राजा ने अपना तख्त उसके हवाले कर दिया। लोहार का बेटा, जिसे कभी हकीर समझा गया, अब अदलो इंसाफ, फहमो फिरासत और इल्म व जादू का ऐसा हुक्मरान बना जिसकी हुक्मरानी कई बरसों तक चमकती रही। और लोग जब कभी महल की जानिब निगाह उठाते, कहते, ये वही लोहार का बेटा है जिसने छुरी मांगी थी, लेकिन किस्मत ने इसे ताज दे दिया।